Very well, people. So, guys, today the intention is linear regression आप कर चुके हैं. आप में लगभग सभी लोगों ने सबमिशन डाल दिया है. There is one team who has not submitted. Who are they? कोई तो है जिसने सबमिट नहीं किया है अभी. Anyway, now submission is not required because today I am going to discuss this with you. Intention to discuss is so that you get the idea कि आप लोगों ने जो किया है. I'm not saying what is right, what is wrong. There is no one perfect approach. Yours can be different. Mine can be different. So it is not about approach. हाँ, कुछ steps ऐसे हो सकते हैं which you missed or maybe you overkilled it. ठीक है, तो उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. आप ही लोगों में से किसी एक का कोड ले रहा हूँ. And this is code by, I believe this is code by the first submission. It is code by, okay, it is by Prasoon and team. Okay, ठीक है. Okay, let's keep a legible font. ठीक है guys, readable now. Readable on your screen. I think font is comfortable now. Let's start off. Okay, my mistake. Let's choose the proper working directory where the dataset is. Here is the dataset. The first thing you did, you dropped this car ID column. Okay. चलो ठीक है, अभी देखते हैं. इन्होंने ड्रॉप कर दिया है with the help of dplyr select. वैसे ड्रॉप करना नहीं चाहिए, बताता हूँ आगे क्यों. क्या कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है? They have imported the dataset to our environment and they have, the first thing they did is they dropped the column number 1, that is car ID. हाँ, आप लोगों ने बिजनेस समझा था, ये बहुत दिनों से ये डेटा आपके पास. car ID, it is just a serial number. They have given what they have done is they have tried to mask the ID of this car. वो नहीं बताना चाहते आपको कि ये कौन सी कार है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल है, for some reason. So they have given just a serial number to that. So this becomes the unique ID of each car. तुम लोगों ने बोला कि ड्रॉप करते थे, ड्रॉप तो करते थे. एक बात बताओ, लास्ट में, बाद में, एंड में जब जाके प्राइस प्रेडिक्ट करोगे तो कैसे बताओगे अपने क्लाइंट को कि ये प्राइस था और हमारा प्रेडिक्शन ये है. ये कार कौन सी है, कौन सी है? अरे समझ पा रहे हो? कैसे बताओगे? रैंडम सैंपल तुम कर दोगे अभी थोड़ी देर में, इसका आइडेंटिफाई कैसे करोगे? ठीक है जी. प्रसून, यू हियर? नो, प्रसून इज नॉट हियर. नो, प्रसून इज हियर एक्चुअली.
Okay, for now, let's go ahead. Rest many things you have done just in line. Okay, you are trying to get the structure of the data set. बिल्कुल सही बात है, देखना चाहिए. You should understand कि आपके कॉलम्स वैसे ही हैं, आपका डेटा वैसे ही फॉर्म में है जैसा होना चाहिए. तो okay, there are many character variables, okay, which contain strings. तो कैरेक्टर होंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, फैक्टर नहीं होने चाहिए थे, हैं भी नहीं. Then there are numeric columns, symboling, horsepower, peak, RPM, this and that, all fine. अच्छा, among them, this you realize, symbolic. Symbolic column, ये हमने समझा था क्या होता है, नंबर्स में है ये, आर को दिख रहा है, इंटीजर है. आपका डेटा डिक्शनरी कुछ और बता रहा है इसके बारे में. किस डीएम से इफ यू आर क्लियरिंग द स्टेज ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, वो कुछ और बता रहा है इस कॉलम के बारे में. ठीक है, देखा होगा डेटा डिक्शनरी को तो आपको पता होगा, उसमें मेंशन्ड है दैट यू शुड ट्रीट दिस कॉलम एज कैटेगोरिकल, मेंशन्ड है वहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट यू आर ट्राइंग टू व्यू. ओके, ठीक है. So all in all, you are doing good job. You are trying to measure the data. You are trying to get the feel of the data, get the just uh, why Prasoon? I didn't find the need of this. We are converting cars as dot data dot frame. वो already data frame ही है. उसे डेटा फ्रेम को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने का आई डोंट सी एनी यूटिलिटी ऑफ दैट. इट इज डेटा फ्रेम ऑलरेडी, not very much needed. Okay, then you have done a fantastic job. Okay, what you have done is, what the people are doing is, you people are getting this. उन्होंने बिजनेस समझ लिया है बहुत अच्छे से, एंड दे आर डूइंग देयर ओन कोडिंग. तो उन्होंने जो सिंबॉलिक कॉलम था उसको इंटीजर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसकी अपनी कोडिंग कर ली है कुछ, जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. फैंटास्टिक, गुड टू सी. ठीक है, वापस देखूं मैं डेटा सेट को तो सिंबॉलिक सारी चेंज हो चुकी है. नाउ इट इज देयर ओन कोडिंग. लेट्स चेक मिसिंग रिकॉर्ड्स. ओके, ये तो तुम्हें पता है. वाह, थैंकफुली देयर आर नो मिसिंग वैल्यू. लेट्स करेक्ट द स्ट्रक्चर अगेन. इट इज नॉट नीडेड, मैं ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ सीधे. दैट्स वन. Second thing I am seeing, which I see in your code, is this is a common practice. Why you are giving a space between a function and this parenthesis? I am not saying it is impossible. I am just saying that when you take auto suggestion, तो ऐसा structure नहीं आता है. It is showing me that you are typing it by yourself. Not a good practice. अगर स्ट्रक्चर का मैं ऑटो सजेशन लूं तो पैरेंथेसिस के और उसके बीच में गैप नहीं होता. दैट्स वन. सेकंड, यार कॉपी पेस्ट करो, माना कॉपी पेस्ट करोगे, बट इतना भी मत करो. देखो दिखाता हूँ. इफ यू चेक स्ट्रक्चर, दे आर ऑलरेडी कैरेक्टर्स. फैक्टर है कहाँ जिसे कन्वर्ट कर रहे हो तुम कैरेक्टर में? अननेसेसरी ऑपरेशन. समझ आ रहा है? ये म्यूटेटिव हमने क्यों किया था? ये हमने इसलिए किया था डायमंड्स में, क्योंकि वहाँ डेटा
फैक्टर फॉर्म में था। फैक्टर फॉर्म मुझे कहीं ना कहीं परेशान करेगा। चीज़ बहुत अच्छी है, अगर मेरा डेटा क्लीन हो तो डेटा एंट्री मिस्टेक नहीं होने देता है। आर को समझ आ जाता है कि कैटेगरीज हैं। समरी देखते ही मेरे को फ्रीक्वेंसी दिखाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। शुरू में अच्छा नहीं है, अभी मेरे को डेटा करना है मैनिपुलेट, इसलिए कर रहा था उसको एज करेक्टर। अभी तो पहले से ही करेक्टर है, अभी क्या ज़रूरत है। यहाँ तक भी ठीक हुआ जी। वसुंधरा, आर डजंट माइंड दीज स्पेसेस। बताता हूँ, आपने यहाँ स्पेस दे दिया, आर डजंट माइंड इट। आपने यहाँ पर स्पेस नहीं दिया, आर डजंट माइंड इट। लेकिन स्पेस नहीं दोगे तो क्लटर्ड लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। इट लुक्स अ क्लीन कोड व्हेन यू यूज प्रॉपर स्पेसिंग, बट यू यू सी दिस प्रैक्टिस। मैंने ऑटो सजेशन इसीलिए बताया था कि ऑटो सजेशन लो तो ये स्पेस यहाँ पर देने से कभी कभी क्या होगा, कुछ फंक्शंस के साथ काम करेगा, कुछ फंक्शंस के साथ ये ग्लिच करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, when you become a good coder, you know your code should be, what do we call it, there are some unsaid rules or unsaid understandings between the uh, entire community of data scientists. रिमेंबर हमने लीनियर रिग्रेशन में बात किया था, शायद मैंने बताया हो आपको कि देयर इज अ कन्वेंशन, देयर इज अ जनरल कन्वेंशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ everybody's understanding, everybody should be on the same page। तो हमने क्या रखा था कि y एक्सिस पे हम प्रेडिक्टर रखते हैं ऑलवेज, सॉरी, y एक्सिस पे क्या रखते हैं, टारगेट ऑन द y एक्सिस, प्रेडिक्टर ऑन द x एक्सिस, ऑलवेज, सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज अक्रॉस द ग्लोब, दिस इज द स्टैंडर्ड। अब तुम मेरे से बोलो कि x एक्सिस पे रख सकते हैं क्या टारगेट, और इसको मैं ऐसा कर लूँ तो, इफ कैन आई स्वैप देम, yes you can swap them, nobody is stopping you, it is just that everybody else will be confused. So that's for one. Second thing, which is more important, R doesn't mind space. Python minds space. R में जैसे अभी तक झगड़ा हुआ होगा ना तुम्हारा दो चार बार R से, कभी स्पेलिंग गलत हो गई होगी, अब R नहीं सुन रहा तुम्हारे, जरा सा भी केस मिसमैच हुआ, ये म्यूटेट का एम कैपिटल हो गया, तो अब R नहीं जानता किसकी बात कर रहे हो। Thankfully, R doesn't mind some spaces. Python will not even spare you for spaces also। वहां पर इस स्टेटमेंट का और इस स्टेटमेंट में डिफरेंस है, यू विल सी व्हेन इट कम्स टू पाइथन। सो ठीक है, तो कीप दीज प्रैक्टिसेस क्लीन। ओके, ऑल इन ऑल गुड, क्योंकि रन हो रहा है कोड, नथिंग रॉन्ग इन दैट। Then you come down to checking and removing duplicate values. So you are saving unique of car into okay, तुम कह रहे हो कार की यूनिक रोज को उठा करके सेव कर दो एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम है डुप्लीकेट। चलो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी कहो, कह सकते हो। What do we see? There are three duplicates because car ID is gone. Okay, you have removed duplicates. Again, it seems like overkilling the copy paste। ये दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं, बार बार करने की जरूरत क्या थी, ये तुमने मेरा कोड कॉपी किया है एज इट इज, यू हैव जस्ट चेंज द वेरिएबल नेम। मैंने सिर्फ करके दिखाया था आप लोगों को कि दोनों तरीके हो सकते हैं डुप्लीकेट रिमूव करने के, ऐसे भी कह सकते हो, वैसे भी कह सकते हो, तो तुम्हें तो एक ही बार करना था। चलो ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज गॉन, मूविंग अहेड। माय गुडनेस, इतना कॉपी पेस्ट, अरे कमेंट तो बदल लेते हैं, नालायक हो।
Okay, first column is symbolic. You are starting off EDA with univariate analysis. You are starting off with fuel type, not symbolic. Why? Chalo, for some reason you don't want to see symbolic. Let's see fuel type. Some are diesel, some are gas. Anything particular here? There are two types of fuels on which these automobiles run: diesel and gas. Gas means in US they refer petrol. They refer to petrol when they say gas. Don't know why. Yes, Sankalp, go ahead, please. So regarding the duplicate values, Mm-hmm. so since I didn't remove sir, cause I thought, it was a long shot, but I thought, different cars can have the same features, Mm-hmm. all the same features. Mm-hmm. So would it be wrong or right? Okay, in that context, now I come to that. See, again, there will be ambiguous decisions. We have been through this. अगर आपने डुप्लीकेसी टेस्ट किया है एंड आप उसको हटा रहे हो, जैसे ही ये लोग हटा रहे हैं, रसून के कोड में डुप्लीकेट वैल्यूज हटाए गई, कल को क्लाइंट क्वेश्चन कर ले जो तुम कर रहे हो बिल्कुल वही. सो डू दे हैव अ रीजनेबल एक्सप्रेशन? कैन दे एक्सप्लेन इट? कैन दे कन्विंस द क्लाइंट? हाँ जी प्रसून, क्या कह रहा है वो तुम्हारा क्लाइंट अंकल? वो ये कह रहा है कि तुमने ये डुप्लीकेट उठा के फेंक दिए. मेरे डेटा में कार ऐसी थी, कैसी थी? एक थी स्विफ्ट, एक थी स्विफ्ट लिमिटेड एडिशन, ठीक है, एक थी द ऑल न्यू स्विफ्ट स्विफ्ट. और क्या हो गया मेरे डेटा में? अब वो सारी स्विफ्ट थी, मैंने उनको नंबर अलग अलग दे रखे हैं क्योंकि कार उनमें कुछ ना कुछ तो अलग है. लेकिन ये सारे प्रॉपर्टीज जितने तुम्हारे डेटा में है, ये सारे प्रॉपर्टी सेम थे उनके. यार समझ आ रहा है तुम्हें बात क्या कह रहा है वो? मेरे इस डेटा सेट में एक गाड़ी थी स्विफ्ट एलएक्स, ऐसे ही होते हैं ना स्विफ्ट के वर्जन. दूसरी गाड़ी थी स्विफ्ट वीएक्स. अब ये दो डिफरेंट कार्स हैं, इनमें फीचर क्या क्या डिफरेंट है? इसमें पावर विंडो नहीं होता, इसमें होता है. इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, इसमें आता है. जस्ट फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल कसम मत खा लेना. हाँ, कभी चिपट जाओ मेरे. मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ. अब इनमें जो डिफरेंस थे वो तो तुम्हारे डेटा में है नहीं, वो प्रॉपर्टीज तो तुम्हारे डेटा में है नहीं. और बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों हैचबैक हैं, दोनों में दरवाजे भी उतने ही हैं जितने हैं, एस्पिरेशन दोनों में ऐसा है, फ्यूल टाइप दोनों में पेट्रोल है, एंड एवरीथिंग इज सेम. तो तुम उसको डुप्लीकेट क्यों कह रहे हो प्रसून? टेल मी संकल्प इफ आई एम तो रॉन्ग. मेरे को जो समझ प्राइस आया भी तुम्हारे तो क्वेश्चन से वो ये था. सर, बट सर जैसे अभी प्राइस इसमें टारगेट तो प्राइस रखे हैं, तो फिर उसको कंसीडर करेंगे कि नहीं इसमें? ओके. बिकॉज लाइक अगेन सपोज कार का वेरिएशन आएगा तो प्राइस भी उस हिसाब से चेंज करेगा ना, जिस तरह से फीचर्स ऐड हो रहे हैं. व्हाट डू तो यू से वही सब प्रसून? फिर आर यू कन्विंस्ड? वो कह रहा है कि अगर उन कार्स में कुछ भी डिफरेंस था, इफ दे वर यूनिक कार्स, तो उनके प्राइस भी तो डिफरेंस होते, कुछ तो डिफरेंट होता. इतनी सारी चीज सभी कुछ सेम. आई थिंक इट इज सस्पिशियस. चलो माना, यहाँ पर मैंने म्यूजिक सिस्टम की बात नहीं की अपने डेटा में, मुझे नहीं पता उनमें म्यूजिक सिस्टम डिफरेंट थे कि नहीं थे. चलो कुछ और भी फीचर हो सकता है लाइक पावर विंडोज, एक में था एक में नहीं था, बाकी सब चीजें सेम थी. लेकिन अगर ऐसी बात है कि कुछ फीचर डिफरेंट था, तो उनके प्राइस सेम नहीं दिखने चाहिए थे फिर? मेरे को तो दिख रहे हैं प्राइस डुप्लीकेट. तो प्रसून का कहना है इसलिए हटा दे रहा हूं मैं. जब सारी ही चीजें सेम हैं, तो मैं इस बात के लिए कन्विंस नहीं हूं. आई डोंट थिंक कि उनमें कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो डिफरेंट होगा
और वो मेरे डेटा में नहीं है। अगर कुछ डिफरेंस होता तो शायद प्राइस में चेंज आ गया होता, कहीं तो चेंज आया होता। साउंड्स कन्विंसिंग? ओके, सीम्स लाइक प्रसून गुड, यू आर विनिंग सो फार, जब तक मैं नहीं पटक देता तुम्हें। चलो खैर, ओके, टेबल देखा आपने, ओके, यूनिवेरिएट देख रहे थे आप, एंड यू सी दैट, ओके, मोस्टली क्या 90% कार्स का जो डेटा है हमारे पास, दे आर ऑन पेट्रोल, वेरी फ्यू ऑन डीजल। एस्पिरेशन, ओके, most of the cars are standard, a very few are turbocharged। डोर नंबर, दो तरह की गाड़ियां हैं, 4 doors and 2 doors, ओके। कार बॉडी, okay, there are several types of car bodies, maximum of them are, most of them are sedan, almost 50%। ये सब चीज छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है ये, समझ पा रहे हैं बाकी लोग? मैं एक कोड मैंने पकड़ के देखा है जो विच आई वुड से इट इज वेरी क्लोज टू यू नो 10 on 10, तो बाकी लोग कैन रिलेट टू इट। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने ऐसा किया है, ऑलमोस्ट अच्छे से किया है। इंजन, ओके, वन थिंग हियर विच आई सी मिसिंग इज प्रसून, आपने, चलो आपने यूनिवेरिएट करके देख रहे हो आप, यू हैव सीन द यूनिवेरिएट्स, आपने जल्दी से देख लिया कि ये क्या है वेरिएबल। बाइवेरिएट यू डिडंट ट्राई एनीवेयर, या है आगे कहीं? इनका प्राइस से क्या लेना देना? जैसे आपने इंजन लोकेशन देना, क्या कोई तरीका है कि यहीं पे आप देख सकते थे जल्दी से कि प्राइस का भी कुछ इसके साथ प्राइस का क्या लेना देना है, क्या प्राइस का फर्क पड़ता होगा इससे? ओके, एनीवे, wheelbase, now it's okay, numeric column, let's check summary. So it varies in a range of 86 to 130 something। wheelbase, wheelbase एक दिन हमने समझा था होता क्या है। समरी देखा, बॉक्स प्लॉट देख रहे हो, पता नहीं क्यों देख रहे हो, क्या देखना चाह रहे थे बॉक्स प्लॉट से? आउटलायर, वो तो हमने समझा था एक दिन, बॉक्स प्लॉट से आउटलायर डिसाइड करके मुझे कुछ मिलता नहीं है, मैं कुछ खास बोल नहीं पाता हूँ उसके बारे में। चलो एनीवे, बुराई कुछ नहीं, देख लिया तो भी ठीक है। तो तुम्हें ये पता चल गया, आउट इतने ये तो दिखा दिया कि आउटलायर है कम से कम, इतना तो पता चला, सही बात है। और हाँ एग्जैक्टली वसुंधरा, बॉक्स प्लॉट इसलिए भी ठीक है कि अगर कल को तुमसे तुम्हारा क्लाइंट तुमसे बोले कि पीपीटी बना के दे दो एक जरा जल्दी से, है ना, हो सकता है ना, तुम्हारे बॉस ने बोला कि क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, उसने बोला है पीपीटी भेज दो, इतना डिस्कशन का टाइम नहीं, तो उसे कैसे दिखाओगे आउटलायर? मे बी बॉक्स प्लॉट। देन यू गो ahead with quantile plots and you find out के हाँ आउटलायर तो हैं, ओके, मिल गया तुम्हें आउटलायर। इनफैक्ट देयर आर टू ऑन द टॉप। रेंज कैसे चल रही है? 110, 12, 14, 14 एंड सडनली इट इज 125, देन 130, ओके, 2 परसेंटाइल्स आर आउटलायर, तो उन्होंने कैप कर दिया उसको, ओके। दोबारा आई थिंक तुमने जस्ट खुद कन्विंस होने के लिए प्लॉट किया है, मैंने बोला था कि दोबारा दोबारा आउटलायर चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, एनीवे, नथिंग रॉन्ग। कार्ड लेंथ, again same drill, okay, this time outliers are on tail of the snake, they are on the tail of the snake। और तुम लोगों ने आउटलायर कहीं जाके चेक कर लिया होगा, कहाँ के बाद हैं? 3, यानी these 3 are outliers, so this should be the capping point, okay, again done। Same goes with car width,
Okay, much of the here you have capped and floored. Okay, both side तुम कह रहे हो कि उधर भी आउटलायर इधर भी आउटलायर, दोनों को ट्रीट कर दिया, ठीक है। ये मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये देख रहे हो? If I see before the caps, again, okay, there cannot be one single standard to treat outliers because it is entirely on your discretion. The decision rests with you कि किसको outlier मानोगे. It is practically it is relative thing. लेकिन कहाँ किया है आप लोगों ने कार्बेट में? You are saying that below 63 you are treating them as outlier. Okay. 1992. किसमें किया था तुमने? अच्छा, पार्किंग एरिया में कर। ओके, पार्किंग एरिया में आप कह रहे हो कि 127 से ज़्यादा वालों को आउटलायर बोल दोगे। 127 से ज़्यादा कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? चेक दिस आउट। कितने लोगों को कर रहे हो आप क्या? तुम यहाँ से कह रहे हो? यू आर गेटिंग वेयर इट वेंट रॉन्ग। ऊपर टॉप पे आउटलायर किसको मान लिया है आपने? 127 को, कि ये मेरे रूटीन मैक्सिमम है, इसके बाद मेरे सारे आउटलायर्स हैं। ऐसा है थोड़ी। दिस वॉज 88 परसेंटाइल। 88 परसेंटाइल मतलब आगे के 12 पॉइंट को आउटलायर बोले तुम। इसको 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 इसको। तो पहली चीज, ये आउटलायर देखने में नहीं लग रहा। दूसरी चीज, आउटलायर कभी ऐसे नहीं होंगे, मैंने मेरे ख्याल से ये भी मैंने बात की थी, ऐसा नहीं होगा कि मेरे डेटा में तो 10% आउटलायर, तुम कह रहे हो तुम्हारे डेटा में 12% आउटलायर, 12% है। ऐसे आउटलायर नहीं होते। आउटलायर कैसे होंगे? 2%, 4%, बहुत हुआ 5%, 6%, बस। अरे ये कैसा हुआ है प्रसून? अच्छा ये बताओ किया किसने है? प्रसून ने किया है कि टीम ने किया है? सुंदर लगता है। अरे भगवान, क्या मस्ती में आ जाते हो तुम लोग। लो बताओ, उसे सुंदर लग रहा है, ग्राफ सुंदर लग रहा है तो इसलिए कर दिया उसने, 12% आउटलायर बता दिया। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा किसी ठीक है। Okay, that still it doesn't explain के why you considered 127 as routine maximum and all others are outlier. ये कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हुआ है कहीं से? ऐसा क्या? ये कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हुई है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अगर इसको नहीं कर रहा होता तो एक्चुअली किसको कर रहा होता? हाँ जी, एक्चुअली किसको कर रहा होता? आउटलायर इज रिलेटिव। मैं सर ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं रूटीन में ही देखने लगूं तो मेरे को लग भी नहीं रहा कि ये आउटलायर। रिलेटिवली देखूं तो ये ज्यादा बाहर लग रहे हैं मेरे को। इनका डिस्टेंस काफी ज्यादा है।
इनके कंपैरिजन में ये तो ठीक से ही लग रहे हैं यार, इतना बाहर थोड़ी जा रहे हैं। माना थोड़ा सा जंप आया है, लेकिन इतना भी ऐसा भी जंप नहीं है कि जिसको मैं बोल दूं कि ये तो आउटलायर होगा, बाहर निकाल। तो ऑनेस्टली मैं कर रहा होता तो मैं शायद इसको कैप करता ही नहीं, मैं सिर्फ फ्लोरिंग करता इसकी। फ्लोरिंग देखें, फ्लोरिंग कहाँ किया आप लोगों ने? फ्लोरिंग में मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 4 पॉइंट तो हाँ डेफिनेटली बाहर हैं, तो 1 2 3 4 फ्लोरिंग ठीक किया आप लोगों ने। फ्लोरिंग में आपने फोर्थ परसेंटाइल ऑनवर्ड्स लिए हैं, मेरे को भी वही लग रहा है। देखो, अब देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक सही लग रहा है, कोई इतना हेवायर तो लग नहीं रहा। कर्व फिट, कर्व फिट में आपने अच्छा ना फ्लोरिंग की है ना कुछ किया है। बाकी लोग बताएंगे जरा क्या कहते हो, आउटलायर है कि नहीं है? इन लोगों ने तो नहीं किया। चेक समरी, बॉक्स प्लॉट भी देखा बना के, बॉक्स प्लॉट कह रहा है आउटलायर नहीं है, सब कुछ रूटीन रेंज है। फिर भी ये काम तो ठीक किया इन्होंने। मैंने बोला था कि हम बॉक्स प्लॉट पे भरोसा नहीं कर सकते फॉर प्रैक्टिकल डेटा सेट्स, बिकॉज बॉक्स प्लॉट तो एक स्टैटिस्टिकल रूल पे काम करता है, दैट 1.5 टाइम्स IQR काइंड ऑफ थिंग, उससे आउटलायर डिसाइड करता है। मेरा डेटा प्रैक्टिकली मेरे को प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है समथिंग, सो आई कैन नॉट बेस माई बिजनेस डिसीजन ऑन जस्ट स्टैटिस्टिकल रूल। तो ठीक है, जैसा मैंने सिखाया था इन्होंने भी भरोसा नहीं किया बॉक्स प्लॉट पे और बना लिया क्वांटाइल प्लॉट। क्वांटाइल प्लॉट कुछ दिखा रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से, आउटलायर है कि नहीं है, क्या बोलते हो? कुछ तो बोले पब्लिक, डिस्ट्रीब्यूशन मेरे सामने है। वेल, आई वुड से वेरी सेफली कह सकता हूँ कि आउटलायर इट इज, हाँ इट इज द कंसिडरेबल ड्रॉप। अगर मैं इसकी रेंज देखने लगूँ, कैसे ड्रॉप हो रही है ये? 1900, 1889, ओके 10 का ड्रॉप आया। 1876 अगेन, 1213, by 1213 units it dropped. 1874 2 units drop. Then it is okay, 74 से सीधे 1819, okay almost 50 का drop, and 1819 से suddenly it is 1819 से सीधे 1400, some 300 units dropping। तो मेरे ख्याल से तो मानना चाहिए था आउटलायर तुम लोगों ने, पर तुम लोगों ने नहीं किया, चलो मैं भी नहीं कर रहा, छोड़ो देखते हैं। नेक्स्ट यू गो अहेड विद engine size, okay? In engine size you check आउटलायर, आपने किसको बोला? 194। 194 मीन्स 194 मीन्स ये सारे आउटलायर। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर। 194 मीन्स आगे 6 आउटलायर होंगे। ये आउटलायर चलो मान सकते हैं, बहुत कंसिडरेबल जंप नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं कंसिडरेबल जंप है और आउटलायर बोल देते हैं इन दो को। लेकिन इन सबको कैसे आउटलायर बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ इन 6 को क्यों आउटलायर बोल रहे हो, और इन 6 को बोल रहे हो तो इन दोनों ने क्या बिगाड़ा है फिर? इन्हें भी फेंको। Seems like some judgment mistake, Prasoon and team। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होने से ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों को बारी बारी। हाँ, सडन जंप कहाँ है वसुंधरा? कितने का जंप है बता?
194 से 202 कितना डिफरेंस है? 8 यूनिट्स। ले फिर तो यहाँ भी जंप है, 2002 से 209, 7 का जंप आ रहा है। और यहाँ कितना जंप है फिर? 209 से 255, ऑलमोस्ट 45 का जंप आ गया है। तो जंप इसे मानो या इसे मानो? और एक बात बता, अगर इसको जंप कह रहे हो कि ये 8 का जंप आया है, तो ये बताना जरा ये कितने का जंप है? 183 से आगे ये 11 यूनिट्स का जंप है। तो फिर तो ये लेना चाहिए था। रिलेटिव बच्चे लोग, आउटलायर इज रिलेटिव, आउटलायर इज ट्रिकी। ठीक है। तो आउटलायर इज समथिंग you have to be very careful about. For now मेरे ख्याल से अभी नहीं किया था तो मैं, ठीक है मैं कुछ और कर देता हूँ, मैं इसको ठीक ही कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको ले लो, इसके बाद सडन जंप लग रहा है मेरे को 209 के बाद से। इसके बाद तो लगता है मैं कह सकता हूँ कि शायद ये सडन जंप बोलूँ तो ठीक रहेगा। ये क्या कर रखा है? इंजन साइज, पार्किंग एरिया दोनों मिक्स हो रहे हैं। मेरा कुछ तो भी हो रहा है, कॉपी पेस्ट काबू में नहीं आ रहा तुम्हारे। कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब सभी कर रहे हैं वो तो, बट डू इट वेरी डिलीजेंटली। ओके, फाइनली हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में आप कह रहे हो ओके, एक आउटलायर है विच इज बियॉन्ड 2207 तक आपकी रूटीन रेंज जा रही है, और उससे आगे आप कह रहे हो कि वो हमारा आउटलायर है। तो तुमने उसे कहीं पे कैप कर दिया एंड अगेन यू प्लॉट देख रहे हो तो ठीक ठाक सा आ रहा है। एक आरपीएम में अगेन कहीं एक जगह आउटलायर दिखा रहा है। ओके, आउटलायर दिखाया 6000 तक रूटीन रेंज, उसके बाद आउटलायर अगेन यू हैव कैप्ड इट। माइलेज, माइलेज में भी है, माइलेज में भी आउटलायर है। कहाँ पर है, किसे माना है आप लोगों ने? 44.72, 44.72। आई डोंट नो कहाँ से ले रहे हो तुम, ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ ही नहीं रहा मेरे तो। चलो फिलहाल मान लेते हैं, बिकॉज 44 तो आ ही रहा है कम से कम, उसके बाद ही है सडन जंप। एंड फाइनली प्राइस, प्राइस में भी कहीं आउटलायर है, लगता तो है। ओके, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे थे आप लोग? इफ आई अनकमेंटेड एंड मैं चेक करूं इस प्लॉट को, कार डीएफ, एक तो कार डीएफ नहीं है, ये तुमने वेरिएबल बना रखा है कार्स। क्या कर रहे थे, मैं समझा नहीं इससे। ये वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है क्या तुम्हें? देखो देखो देखो, ओरिजिनली आपका डेटा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ यू ट्रीट दीज टू आउटलायर्स, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये ऑलमोस्ट लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन कब की थी हमने? जब लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, वो थी मेरी प्रॉब्लम। अभी तो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, अभी तो इतनी दिक्कत नहीं लग रही मेरे को।
हाँ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम चेक तो कर रहे थे, तुमने चेक कर लिया, विशेष गलत कुछ नहीं हुआ है। अगर आपने लॉगरिथमिक का डिस्ट्रीब्यूशन चेक भी कर लिया, मोस्टली अभी भी लीनियर ही है, हालांकि जरूरत नहीं थी। फिर तुम स्क्वायर रूट का भी चेक कर रहे हो, ओके चलो स्क्वायर रूट का चेक कर लिया। अगेन मोर और लेस, इफ आउटलायर्स आर टेकन केयर ऑफ, अगेन मोर और लेस लीनियर ही है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तो काम आती हैं जब ये लॉगर मेरा ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर नहीं हो। अगर ओरिजिनली ही लीनियर है तो फिर करने की जरूरत नहीं रहती। तुमने वो सब तो कर लिया, ये फाइनली तुम माने नहीं, तुमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की है अपने कोड में। अगर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन कर ली तो अब ये प्लॉट, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा। लीनियर तो है, बहुत बढ़िया, नथिंग रॉन्ग। हाँ गलत नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, अगर ओरिजिनली लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता बहुत अच्छी बात थी, जैसा कि है। फिर भी तुमने लॉग ले लिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, तो भी लीनियर ही है, तो गलत कुछ नहीं हुआ है। इट इज जस्ट दैट इन द एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो भी प्रेडिक्शन आएगा वो लॉग फॉर्म में आएगा। इट विल नॉट बी कार प्राइस, इट विल बी लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ कार प्राइस। तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने ठीक है जी, यहाँ तक ओके। यहाँ तक मोस्टली आप लोगों ने ईडीए करके देख लिया है। दैट्स कम्स टू द एंड ऑफ यूनिवेरिएट एनालिसिस। एंड डू यू नीड ब्रीदिंग टाइम? थोड़ा सा टाइम ले लें, टेस्ट हो गया थोड़ा सा। बाकी लोग एक बार चेक कर लो, मैच कर लो अपना कोड। नॉट यू, प्रसून एंड टीम, तुम्हारा कोड तो मैं रन कर रहा हूँ, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, बिकॉज बाकी लोग क्योंकि अपना कोड उन्हें थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ वो भी एक बार टाइम ले लें, थोड़ा सा एडिट करके देखना चाह रहे होंगे। बिल्कुल एक जैसा कोड नहीं होगा ना शायद, रन तो मैं मेरे साथ कर नहीं पाए होंगे। ठीक है, यू पीपल आर नॉट मेकिंग नॉइस। हाँ एविट पर तो आई एम गुड टू गो, मैं चल सकता हूँ अभी, बट मैं हाँ आई एम एंटिसिपेटिंग दिस दैट यू विल, many of you will want to क्रॉस चेक विद योर कोड। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे कोड में भी, या कुछ और करना चाहिए था। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, एनीवे, अच्छा ओके शुभ, हाँ देन इट इज ओके, कम्स टू दैट। we resume at what time? It is 11:54 by my clock, so we resume at 12:05। ठीक है, थोड़ा सा देख लो एक बार, मीन भाई we can continue in 10 minutes। Okay, so here we continue again। फाइनली लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब समरी देखोगे, योर प्राइस हैज रिड्यूस्ड इनटू स्केल ऑन स्केल ऑफ व्हाट, क्योंकि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन किया है लोगों ने। इट शुड नॉट बी, दो बार हो गया क्या? Yes, this is something, you know, this is something very nasty with our, there is no undo. If you have run a command, it has done its job, cannot undo it। दो बार रन हो गया था log actually, that's what I suspected। So actually it has, it is now in range of 8 to 10।
Next, we go ahead with feature engineering. They are doing some feature engineering. That's fantastic to see. Wow. What they are doing is they are dividing horsepower by peak RPM of the car, multiplied by a factor, and I don't know why you are calling it torque. Uh, where did this come from, Prasoon? मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फंडे हिला दिए तुमने. Whatever you are calling it, it is okay. You are calling it torque, but you are calling this name wrongly here. Torque नहीं होता ये. A torque has nothing to do with peak RPM. But anyway, I am assuming that you are creating a variable. That is a nice thing. You have created a new variable because logic is in place. बाकी लोगों को बता रहा हूँ, लॉजिक उनका बिल्कुल ठीक है. कार का हॉर्स पावर और कार के पीक आरपीएम में कुछ तो रिलेशन होता होगा. एक कार का इंजन कितना हाई आरपीएम तक रन कर सकता है, दैट्स इट्स पीक आरपीएम. और फिर मैं कह रहा हूँ उस कार की कुछ हॉर्स पावर भी होती है. शायद कहीं ना कहीं कुछ लिंक है. They are calling it acceleration. Again, I seriously doubt that it is acceleration in any way. You are dividing mileage by peak RPM. Again, logic is in place. इन दोनों में कुछ रिलेशन हो सकता है. किसी कार का इंजन कितनी हाईएस्ट आरपीएम तक जा सकता है और वो कार फिर माइलेज कितना देती है. ऐसा लग रहा है देयर शुड बी नेगेटिव कोरिलेशन इन दिस. Okay. Then you are calculating power weight ratio. You are creating a variable BWR, and okay, again there is a variable. Then you are creating horsepower to mileage ratio. Okay. Weight to mileage ratio. Okay. Wheelbase to car length ratio. Okay. Now you may wonder where this is coming from. बाकी लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है. There is something very good these people have done. They have tried to create new variables. उनको ठीक है, उनको इस ऑटोमोबाइल का इतना जानकारी नहीं था, and nothing wrong in that. हर किसी को हर इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं हो सकता. मेरे को भी अगर ऑटोमोबाइल की बात करोगे, आई एम वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट. लेकिन मेरे को ही अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करने लगोगे या लोन सेक्टर की बात करने लगोगे, शायद मुझे भी नहीं पता. इन एंटायर करियर आई हैव नेवर डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स. एनीवे, दे हैव डन देयर बेस्ट. उन्होंने जितना भी उनका लॉजिक लगा, जितना उनको समझ आया, जहाँ से भी उन्होंने रिसर्च किया होगा, दे आर क्रिएटिंग सम न्यू वेरिएबल्स. ऑसम. ओके, फाइनली यू व्यूड कार. ओके, चलो देख लेंगे बाद में. इसमें one more thing which they have taken care of is, perhaps I said that जब मैं बता रहा था इसके बारे में, they have nowhere they have used price. किसी भी फीचर इंजीनियरिंग में उन्होंने प्राइस को यूज नहीं किया है, बिकॉज प्राइस इज द टारगेट वेरिएबल. वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करते हम फीचर इंजीनियर करते. तो स्केल दिस डेटा सेट, वेरी फैंटास्टिक. कार्स डेटा सेट, जो भी कॉलम न्यूमेरिक मिले म्यूटेट कर दो. कैसा म्यूटेट? स्केल. तो न्यूमेरिक मिले तो म्यूटेट कर दो, न्यूमेरिक नहीं है तो उसको छोड़ देना ऐसे कैसे. लेट्स से, तो जो न्यूमेरिक नहीं थे वो सबको छोड़ दिया, जो न्यूमेरिक थे उन सब के उसने स्केलिंग कर दिया. स्केलिंग कैसा? जी स्कोर्स में कन्वर्ट कर दिया उनको जो भी आया. नाउ अभी तक one thing you people, I don't know if you have kept this in mind. कितनी कहानी हो चुकी है? जो आपका ओरिजिनली प्राइस था उसको
उसको आपने ट्रांसफॉर्म कर चुके हो आप लॉग ऑफ प्राइस में। ध्यान रखना इस चीज का, अभी बात करूंगा इसकी थोड़ी देर में। और लॉग ऑफ प्राइस जो था उसको आप क्या कर चुके हो, अभी अभी तो किया है, उसको कन्वर्ट कर दिया आपने जी स्क्वायर ऑफ व्हाट, जी स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ प्राइस। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे इसका। हमारा जो प्रेडिक्शन, अब हमारे मॉडल को जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो इस बात के प्रेडिक्शन के लिए जा रही है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। Now seems everything in place, very fine. Just dummy variable बनाना रह गया है। Pay attention to the environment. कार्स में कितने कॉलम हैं देखते रहना। और अब जब डमी वेरिएबल बना रहा हूँ, what happens suddenly? फाइनल डेटा में अचानक बहुत सारे वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। हाँ, तो वही होता है डमी वेरिएबल। एक कॉलम में जितनी कैटेगरीज होंगी उतने नए कॉलम बन जाएंगे और ओरिजिनल कॉलम चला जाएगा। So dummy variable is supposed to increase the number of columns in data set. Then there are training and validation, final data 1:40, and then all others then 1:40. We talked about this also. ट्रेन डेटा, वैलिडेशन डेटा, मेरे को दो डेटा बनाने हैं अवेलेबल डेटा से। एक से मॉडल बनेगा, दूसरे से मॉडल टेस्ट करेंगे, बट वी डोंट डू इट दिस वे, रिमेंबर। सो आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग इट दिस वे, ऑल्दो दे हैव डन इट करेक्ट। वो भी किया हुआ है, वो कॉपी पेस्ट में उसे हटाना भूल गए। तो हम ऐसा नहीं करते, वी सेट सीड एट सम रैंडम वैल्यू विच एवर वी वांट एंड वी टेक रैंडम सैंपल। ट्रेन एंड वैलिडेशन, नाउ इट इज ओके। फाइनल डेटा की आई रोज कहाँ चली जाएं ट्रेन में, और फाइनल डेटा की आई छोड़ के बाकी रोज कहाँ चली जाएं वैलिडेशन डेटा सेट में। आई रोज कितनी है, दे आर 75% ऑफ फाइनल डेटा। तो my 75% data has gone into train, the rest has gone into validation. Let's go ahead, creating model 1 with all the variables, price tilde dot। ठीक बात है, ये कहानी कई बार कर चुके हैं हम। प्राइस टिल्डा डॉट, डॉट माने प्राइस छोड़ के सारे। लेट्स चेक समरी एंड व्हाट डू वी हैव, adjusted r squared of 76%। I say very good, काफी अच्छी है। Then they have moved on to step reduction, ये भी हम जानते हैं, बिकॉज अभी मेरे डेटा सेट में बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे क्या, ज़्यादातर मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनको मेरा मॉडल कह रहा है इनकी पी वैल्यू इज़ वे टू हाई, इट मीन्स दे आर नॉट ऑफ एनी यूज इस प्रेडिक्शन में। कुछ कुछ वेरिएबल्स उसने बताए हैं विच आर इंपॉर्टेंट, जहाँ स्टार लगा हुआ है, दैट दीज आर इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस पे प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है विद अ फिट ऑफ आर स्क्वायर्ड एज एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड ऑफ 76%। हमने जिस समय पहले कर रहे थे उस समय इतने वेरिएबल्स नहीं थे, बट नाउ यू हैव अ डेटा सेट विच हैज एम्पल वेरिएबल्स। ये देख रहे हो, मल्टीपल आर स्क्वायर्ड और एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड में गैप कितना है, इट इज अराउंड 4-5%, बिटवीन समवेयर देयर। ठीक है, हमने बात की थी इसके बारे में, अगर मेरे मॉडल में बहुत सारे फालतू वेरिएबल होंगे एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड विल बी पेनलाइज्ड। अगर मेरे मॉडल से फालतू वेरिएबल्स चले जाते हैं adjusted r squared will be rewarded. So that's why we don't focus on multiple, we focus on adjusted r squared. तो नेक्स्ट उन लोगों ने स्टेप रिडक्शन कर दिया and okay, many iterations. After several iterations we see, you see
बहुत सारे फालतू वेरिएबल चले गए हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीज हो गई है, डिस्पाइट मल्टीपल आर स्क्वायर शायद उतनी ही है अभी भी। एडजस्टेड आर स्क्वायर मेरे को इंक्रीज दिख रही है, यानी क्या बताने की कोशिश कर रही है ये एडजस्टेड आर स्क्वायर, दैट ये पहले वाले मॉडल से इन सम वे दिस मॉडल इज बेटर। यहाँ तक भी ठीक हुआ। हाँ जी, नेक्स्ट क्या करते थे? नेक्स्ट आई एम वरीड अबाउट व्हाट, यस, VIF थिंग। मेरे डेटा में ऐसे वेरिएबल्स सभी हो सकते हैं विच आर रिलेटेड टू अदर वेरिएबल्स, तो उनका रहना ना रहना बराबर है, बल्कि ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज मेरे को ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं अपने क्लाइंट को पिन पॉइंट वो बता पाऊंगा वेरिएबल जहाँ उसको काम करना चाहिए। It says ACC is highly correlated. कहाँ था ये कॉल? हाँ ये रहा। थोड़ा बहुत शायद चेंज हो गया होगा, इसलिए मैं भी अभी दोबारा ही चेंज कर रहा हूँ। अच्छा ये लोग भी वही कर रहे हैं, GCC की हाईएस्ट आई है, तो लेट्स रिमूव इट, देख लो हटा कर। ACC रिमूव कर दिया आपने, यू क्रिएट अनदर मॉडल एंड वी सी एडजस्टेड आर स्क्वायर इट इज, ओ कितनी थी पहले? इट वाज 78। ACC रिमूव किया तो इट ड्रॉप्स बाय 2%, दैट इज ओके, although I can afford this much drop, but I would like to cross check। ACC को मेरे मॉडल ने बताया था वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। अब दोनों बातें हो सकती हैं, आइदर दिस इज फेकिंग टू बी इंपॉर्टेंट और इट इज रियली इंपॉर्टेंट। वो पता कैसे चलेगा? ओनली व्हेन वी चेक इट। श्योर पर्सन, ठीक है, इट्स ओके। ओके, ऑल अदर्स प्लीज पे अटेंशन। क्या और कुछ रिमूव कर सकता हूँ इसकी जगह पे? शायद कुछ बात बन जाए। एडजस्टेड आर स्क्वायर 78 था, VIF देखा तो इसका हाईएस्ट तो है, लेकिन क्या कुछ और चल सकता है? वी सी इट इज हाईली कनेक्टेड विद माइलेज, लग रहा है देखने में। तो रादर देन ACC अगर माइलेज हटा के देखें क्या होता है, देखें। तो आई ऐड ACC बैक एंड वेयर इज माइलेज, देयर इट इज। आई होप यू आर गेटिंग इट एवरीबॉडी, प्लीज, क्योंकि बोल नहीं रहे हो कुछ भी, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग टुडे एनीथिंग। जस्ट ऊपर, व्हाट इज दैट सपोज टू मीन शुभम? जस्ट ऊपर में एंड अप एंड हाँ मैं वही कहने वाला था, जस्ट ऊपर के दोनों मतलब हो सकते हैं, कि एक तो कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है, और आई may consider it is a cue for me to do something on the upper side of my screen। हाँ जी, बोलोगे जरा जल्दी से? just give me that it is going good, just give me a good if it is going good। and even if you have walked out, do do tell me please, वो भी बता देना।
ओके, चलो ज़्यादातर लोग ठीक ही ठीक बोल रहे हैं, मतलब जितने भी बोल रहे हैं अभी तक तो ठीक ही बोल रहे हैं सब। आई एम डूइंग समथिंग राइट। ठीक है, हमने एसीसी हटा के देखा, चेक किया, वीआईएफ में ड्रॉप आया, सिर्फ 1-2% का ही ड्रॉप था। इट्स ओके, इट्स अफोर्डेबल, बट स्टिल हाईएस्ट ये था, और इसी के ऑर्डर में मतलब सेकंड हाईएस्ट भी इससे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 147। तो इसे भी हटा के देख सकते हैं। इसे हटा के देखूं तो क्या होता है, देखें, वही देख रहे थे। अगर माइलेज हटा दिया एंड व्हाट डू वी सी, पहले 78 था, माइलेज हटाने से 75.5 है। तो ड्रॉप अभी भी ठीक है, नॉट गुड नॉट बैड, लेकिन उससे तो ज़्यादा हो रहा है। यानी माइलेज एसीसी से तो इम्पॉर्टेंट ही है मेरे लिए। सही बात, यही मतलब हुआ इसका। तो लेट्स कीप माइलेज, रिमूव एसीसी, वही ठीक है हमारी। तो शायद आप लोगों ने भी वही किया है मेरे ख्याल से। आप लोगों ने, आई होप का आप लोगों ने ये ट्राई करके देखा होगा दोनों हटा कर। Prasoon has left, his team must be here. तो ओके, पहले 78 था, नाउ इट इज 0.76, 2% का ड्रॉप है, लेकिन मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो फेक वेरिएबल चला जाए, चला जाए। ओके, व्हेन आई सी दिस, देख रहे हो एसीसी के जाने से माइलेज अपने आप ठीक हो गया। इसका मतलब दोनों में हाई कोरिलेशन था, दोनों ही बहुत एलिवेटेड दिख रहे थे। दिस टाइम ओके, हाईएस्ट इज वेट एमपीजी रेशियो, बट क्या ये इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट है? वेट एमपीजी रेशियो, मेरा मॉडल तो कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीआईएफ कह रही है ये हाईली कोरिलेटेड है, यानी देख लो इसे हिला डुला के देख लेते हैं। वेट एमपीजी रेशियो कहाँ है ये? एंड व्हाट डू वी सी, अगेन 2% ड्रॉप। ओके, ये 2% के ड्रॉप, नाउ दीज आर ट्रिकी वंस, करना है नहीं करना है, चलो। लेकिन ओके, एक चीज़ अच्छा हुआ कि उसके जाने से बाकी सबका ठीक ठाक सा लगने लगा। इट वॉज सम इन ऑर्डर ऑफ 20, उसके जाने से बाकी सबका ठीक सही हो गया, 10 के नीचे तो आ ही गया है। कैन वी चेक समथिंग एल्स? लेट्स चेक इट आउट। वेट हटाने से 2% का ड्रॉप आता है आर स्क्वायर में। देयर इज समथिंग कर्व वेट ऑल्सो, it is 23, it is 17, okay, it is 8, 8 is okay, 8 is not in consideration because it is nowhere near to this 23. 70s is anyway okay, comparable at least. तो अगर वेट एमपीजी रेशो ना हटाएं, उसकी जगह कर्व वेट हटा देते हैं, देखते हैं आर स्क्वायर पर क्या इम्पैक्ट आता है। हाँ जी, इससे तो वही अच्छा था, यही पता चल रहा है। सडनली 4% का ड्रॉप आ गया। राइट, तो इसका मतलब मान जाओ यही कर लेते हैं, इससे तो वही ठीक है। देख रहे हो एडजस्टेड आर स्क्वायर थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा है, पर मैं भी मान नहीं रहा हूँ, मैं हटाते जा रहा हूँ। आर स्क्वायर कम होने का मतलब है मॉडल का फिट अब पहले जैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा कम फिट, अच्छा फिट हुआ है, लेकिन मैं फिर भी हटा रहा हूँ। वी विल कम टू दैट। नाउ यू आर सेइंग दैट वीआईएफ इज कंट्रोल्ड, एक्चुअली नॉट कंट्रोल्ड येट। कर्व वेट अभी भी हटाने की बात कर रहा है, अभी भी इट इज ऑलमोस्ट 10। मेरी कोशिश रहेगी 5 के आसपास लाने का इसको, चलो, बट फॉर नाउ मान लेते हैं।
मान लेते हैं कि ये ऐसा ही था। तो अगली कहानी आती है लेट्स प्रेडिक्ट। अगर मान लेते हैं कि वीआईएफ कंट्रोल आ गई, वैसे अभी हटाना चाहिए था आप लोगों को, बट ठीक है, अदरवाइज सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड एनीवे इट इज़ नॉट दैट बैड ईदर, इतना भी बुरी हालत नहीं। अब ये लोग प्रेडिक्शन पे जा रहे हैं, दे आर कॉलिंग दैट ओके मॉडल 4 हमारा फाइनल मॉडल बनता है। हाँ आता हूँ सिद्धार्थ उस पर, अभी प्रेडिक्शन देख लें। इन्होंने कहा कि मॉडल 4 हमारा फाइनल मॉडल हो गया है, इट इज़ वेरी मच फिट, इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल द VIFs, बट अगेन यू हैव डन इट वेरी हेस्टिली। यू सी अभी तो VIF टोटल कंट्रोल नहीं है, चलो फिर भी माना कंट्रोल्ड है, लेकिन यू सी नाउ देयर आर वेरी अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स। पता है जब कोरिलेटेड वेरिएबल जाते हैं, रिमेंबर मैंने ये भी बोला था, वी रिमूव देम वन बाय वन ऑन पर्पस, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट। द रियल पर्पस इज बिकॉज इनकी इंपॉर्टेंस हर बार चेंज होती जाएगी, एक के जाने से दूसरे का समझ आने लगेगी कहानी कि वो भी रियली इंपॉर्टेंट था, या वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट दिख रहा था कि कोई और बैठा था यहाँ पे। दो घटिया आदमी मिलके एक दूसरे की तारीफ कर रहा है, दूसरा पहले की तारीफ कर रहा है, दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, लेकिन एक जैसे उठ के गया दूसरे की औकात भी पता चल गई। राइट, अभी अभी वही हुआ है। ठीक है, who who are the peers, who are the people who are team with Prasoon, Vasundhara and Mansi? I don't think Mansi has contributed in any way. I kind of know that because I know that she ran into a serious trouble last week. I don't think. Okay, very well. So that means okay. Okay, but then the onus is on you, Vasundhara. I'm asking you. You are the only one over here. Mansi is also not here today. Prasoon has also left for some, you know, some emergency call. ये why didn't it occur to you? ये समरी तो दिखा होगा। अगर VIF ठीक मान भी रहे हो, चलो अंडर 10 आ गए, तुमने वहां पे भी संतोष कर लिया कि VIF हम इससे ज्यादा नहीं सोचेंगे, बट व्हाई नॉट P वैल्यूज? यू शुड हैव रिमूव्ड P वैल्यू को अकॉर्डिंग भी तो हटाते। For some reason you have not done that. It didn't catch your attention, but anyway we do that. मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, I am not criticizing you and I am not I am not thumbing you down. अच्छा, you made the structure. Oh, okay, then it is a praiseworthy thing. The structure is something which I liked, really liked. Well commented, well sequenced, as I was expecting. Honestly speaking, as good as structure is as good as जैसा मेरा कहता है usually. मेरा कोड चाहे पाइथन हो या R हो, यूजुअली स्ट्रक्चर मेरा भी सोचने का तरीका कुछ ऐसे से होता है यूजुअली। चलो खैर, मान लेते हैं कि ये फाइनल मॉडल आ गया। जब आप सारी चीजें हटा लोगे, ऑल unnecessary variables gone, now you are coming to prediction. Prediction का syntax is
यू टेल द मॉडल जिससे प्रेडिक्शन करना है, एंड यू टेल द न्यू डेटा कि अब प्रेडिक्शन करना किस पे है। तो वैलिडेशन डेटा सेट में आपने एक इनिशियलाइज कर दिया है नया कॉलम प्रेड प्राइस। लेट्स सी वेयर इज वैलिडेशन। हियर इट इज। क्या क्या बातें आ गई, एक तो आपका प्रेडिक्शन आ गया है और दूसरे ओरिजिनल प्राइस आप लोगों को ऑलरेडी मालूम। कहाँ है, ये रहा। मुझे बताइए एक पहली, अगर समझ आ रहा हो आप लोगों को तो। आपने सबसे शुरू में क्या किया था, एक काम किया था आप लोगों ने स्टार्टिंग में बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ इतना ओरिजिनल प्राइस था, ये और नहीं, बाकी सब डेटा तो छोड़ो, वो तो काम हो चुके हैं। अब तो बात इतनी बची कि मेरा प्रेडिक्शन कैसा है। मैंने कहा ये मेरा ओरिजिनल प्राइस और ये मैंने प्रेडिक्शन किया है मेरे मॉडल ने प्राइस का। अब कौन सी कार है ये, क्या बताऊँ अपने क्लाइंट को कि ये कौन सी कार के बारे में बता रहा हूँ मैं तुम्हें ये बातें। ये मर्सिडीज थी, ई क्लास थी, सी क्लास थी, वो तो उसने मुझे नहीं बताया। उसने जो मुझे बताया था वो मैंने कॉलम डिलीट कर दिया। समझ रहे हो। ठीक है हाँ। तो वो कॉलम प्रेडिक्शन के लिए फालतू है, वाकई फालतू है। प्राइस पे उस सीरियल नंबर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका फिर भी कुछ मतलब है। आई विल नीड इट टू आइडेंटिफाई। तो उसको इतनी जल्दी से डिलीट नहीं करते हैं, हम उसको एक्सक्लूड करते हैं इन अ डिफरेंट वे। चलो ठीक है, फिलहाल बाकी चीज़ों की टेंशन लेते हैं। प्रेडिक्शन आ गया, तो ये कैसा प्रेडिक्शन आया है, रिमेंबर क्या आया है प्रेडिक्शन में हो गया आपका, ये आया है जी स्कोर ऑफ लॉग ऑफ प्राइस। रिमेंबर, तो वही उसने मेरे मॉडल ने प्रेडिक्शन दे दिया। उसने बताया है कि मैंने प्रेडिक्ट कर दिया है क्या, जी स्कोर ऑफ लॉग ऑफ प्राइस। अभी तो वापस प्राइस भी तो बताना पड़ेगा, मेरे क्लाइंट को थोड़ी पता है क्या किया तुमने। अपने मॉडल को फिट बैठाने के लिए तुमने बहुत सारी एक्सरसाइज की होगी, वो तुम जानो। उसे तो इस बात से मतलब है कि प्राइस कितना है मेरी कार का, वो बताओ। सो लेट्स, कैसे करोगे इसको। आई थिंक हियर यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट बैक, यू आर मतलब लॉग की जगह यू वांट टू टेक इट एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने के लिए ऐसा कर रहे हो। पहली चीज गलत हो रही है, आपने जो लॉग लिया था दैट वाज नेचुरल लॉग, इट वाज नॉट लॉग ऑन बेस ऑफ 10, इट वाज लॉग ऑन बेस ऑफ ई। दूसरी मिस्टेक, अभी ये जी स्कोर्स है, पहले जी स्कोर से तो पीछे छुड़ाओ। हाँ हाँ, वसुंधरा देखो, तुम्हारे कोड में लिखा है भाई, आप ही लोगों ने किया है। तुम लोगों ने प्राइस का स्ट्रक्चर देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, लीनियर सही था, बट फिर भी सेफ साइड तुमने उसका लॉग ले लिया, वो फिर भी स्ट्रेट ही था। हाँ, जब हम लॉग फंक्शन यूज कर रहे हैं, सो दिस, जब हम आर में अगर मैं लॉग फंक्शन लिख रहा हूँ ना, बाय डिफॉल्ट दिस लॉग इज ऑन बेस ऑफ ई। नेचुरल लॉग ये होता है, अगर लॉग ऑन बेस ऑफ 10 होता है तो वो लॉग 10 की तरह दिखता है आर में। देखो देखो, दिखाता हूँ। अगर मेरे को बेस 10 पे लॉग लेना होता तो मैं उसको लॉग, ये देख रहे हो ये आ रहे हैं ऑप्शन, बेस ऑफ 10, बेस ऑफ 2,
you want to create you want to take a random base, you want to customize this base, you have log b, you can mention your own base. By default जो log रहता है, this is on base of exponent e. तो इसका एंटी लॉग लेने के लिए क्या करोगे, यू विल नॉट, एंटी लॉग लेने के लिए इसकी नॉट 10 to the power, इसका एंटी लॉग क्या होना चाहिए, e to the power this, वो होगा इसका एंटी लॉग, राइट। और ये तो चलो, ये तो हुआ लॉग की बात, अभी तो लॉग की बात ही नहीं कर रहे, इससे पहले तो मुझे जी स्कोर से जान छुटानी है। ये जो प्रेडिक्शन आया है, ये जी स्कोर आया है, जी स्कोर ऑफ लॉग ऑफ प्राइस, तो एंटी लॉग तो बाद में लेंगे, पहले ये जी स्कोर से तो वापस इसे नॉर्मल बनाओ, जी स्कोर से पहले इसे वापस लॉग में तो लेके आऊं। अब ये कहानी वापस चल पड़ी है, जैसे तुम ट्रांसफॉर्म करते हुए आए थे ना, ये प्राइस से लॉग प्राइस लिया, फिर लॉग प्राइस से जी स्कोर बना दिए थे, तो अब वापस भी तो ऐसे ही जाएंगे, पहले जी स्कोर से लॉग ऑफ प्राइस पे आते हैं, फिर लॉग ऑफ प्राइस से प्राइस की बात करें। कैसे करोगे, जी स्कोर कैसे बनाया था, अरे जी स्कोर कैसे बनाया था, जी स्कोर किसी चीज का कैसे बनाया होगा, माना तुमने स्केल फंक्शन यूज किया था डायरेक्ट, लेकिन कैलकुलेशन तो मालूम है, जी स्कोर किसी चीज का क्या होता है, वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। अब जी स्कोर तुम्हें पता है, जी स्कोर तुम्हें पता है, वो तो मॉडल ने प्रेडिक्शन दिया है, यू आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू जिसका ये जी स्कोर है, तो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करोगे, हाँ जी, यू नहीं, मेरे को एक्स चाहिए, तो क्या बोलूंगा इसको, मैं कह रहा हूँ जी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस, हाँ प्लस मीन, पता चल गया, ठीक है। अब ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये कहाँ से आएंगे, ये ओरिजिनल डेटा के हैं, जी स्कोर बनने से पहले जो डेटा था उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, तो जहां तुमने लॉग प्राइस बनाया है वहीं देखेंगे, ठीक है जी। कैसे करोगे, आर में कैसे करोगे अगर कर रहे होगे तो, प्रेडिक्शन आ गया, प्रेडिक्शन इज इन फॉर्म ऑफ जी स्कोर ऑफ लॉग ऑफ प्राइस। अब हम वापस जाने की बात कर रहे हैं, तो हाँ कहाँ से लाओगे, अरे कहीं से नहीं लाओगे, इतना दिमाग थोड़ी लगाना है, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, कोड तो नहीं कर रहे हो आप लोग, कोड मत करना है मेरे साथ, बस देखते रहना, वीडियो में मिल जाएगा सब जगह। मे बी विद अ डिफरेंट थिंग, दोबारा रीड कर लो डेटा सेट, दोबारा रीड कर लिया डेटा सेट, पता चल जाएगा, प्राइस को बोल दिया लो, या छोड़ो ना, डेटा फ्रेम में क्यों चेंज करना है, मैं कह रहा हूँ प्राइस वेक्टर, इसको प्राइस वेक्टर इज अ थिंग विच इज लॉग ऑफ व्हाट, यही कार डीएफ में जो प्राइस कॉलम था उसका लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग, ठीक है, u इज इक्वल टू मीन ऑफ दिस प्राइस वेक्टर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस डी ऑफ दिस प्राइस वेक्टर। मिल गई जी दोनों वैल्यू,
मुझे क्या कैलकुलेट करना था, जी स्कोर, वो तो यहाँ रखे हुए हैं, यही तो दिया है प्रेडिक्शन मेरे मॉडल ने, जी स्कोर ऑफ लॉग ऑफ प्राइस। अब उस जी स्कोर से लॉग ऑफ प्राइस निकालना है मेरे को, पता चल गया। प्रेडिक्शन में लॉग ऑफ प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी द जी स्कोर, वो कितना है वैलिडेशन में, प्रेडिक्टेड प्राइस, ठीक है। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी तो बनाया फॉर्मूला हमने, एंड यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए मीन वैल्यू, दैट इज यू, मे बी ब्रैकेट्स इफ यू वांट इट नीट एंड टाइडी। ठीक, बढ़िया, यहाँ तक ठीक ठाक। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम अभी तक, किसी को कोई क्वेरी नहीं? इतना सन्नाटा क्यों है भाई, या तो सब समझ आ रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मुझ पे, मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि कुछ सब कुछ समझ में आ रहा है, फिर वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। अच्छा, सच में इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ? चलो ठीक है फिर। बस एक काम रह गया फिर तो, अब तो आसान है। लॉग ऑफ प्राइस के फॉर्म में प्रेडिक्शन आ चुका है, इस लॉग ऑफ प्राइस से बस एक स्टेप और जाना है मेरे को, लॉग ऑफ प्राइस तक मैं आ गया हूँ, बस यहाँ से वापस प्राइस पे आना है, एंटी लॉग लेना है मेरे को। हाँ जी, नेचुरल लॉग के लिए एंटी लॉग क्या होता है? हाँ, ई टू द पावर करना है, सही बात। ये 10 की जगह जो ई टू द पावर करना है, नॉट वेल एक्चुअली, एक तो लॉग ऑफ प्राइस और दूसरे ये 10 टू द पावर, ई टू द पावर करने के लिए, हाँ जी, डायरेक्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, ई एक्स पी, ये क्या होता है, वही ई की पावर में कुछ रखना है। तो मैं कह रहा हूँ वैलिडेशन डॉलर में जो ट्रेड प्राइस कॉलम बनाया था वहां पर वैल्यू भरो, कौन सी वाली, अच्छा वैलिडेशन में मत भरो, यहीं पर इंडिपेंडेंट वेक्टर, वहां पे अभी कुछ और देखना, ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ऑफ प्रेडिक्टेड प्राइस, प्रेडिक्टेड लॉग ऑफ प्राइस, तो ये आ जाएगा आपका, आई थिंक वही जो हम ढूंढ रहे थे। ये कह रहा है आपका मॉडल, इसको वैलिडेशन में ही डाल लोगे तो वहां पे भी दिखने लगेगा डेटा, नया नाम दे दे रहा हूँ ट्रेड प्राइस का, उसे चेंज नहीं कर रहा अभी, कुछ और भी बताना था अभी उसके बारे में। किधर गया वैलिडेशन डेटा, ये रहा। ठीक है जी, आ गया प्रेडिक्शन आपका। तो यही ध्यान रखने वाली बात है, वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन जितने मर्जी कर लो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए आपको, क्योंकि क्लाइंट को यही चाहिए, उसे मतलब नहीं है आपने क्या बनाया था उसका, लॉग स्क्वायर रूट जो मर्जी करते रहो, वो तो ये पूछेगा ना भाई क्या कहते हो तुम। तो ये आपने प्रेडिक्शन का रिवर्स कैलकुलेशन किया है,
ओरिजिनल प्राइस का भी कर लोगे ऐसे ही, एक्चुअल प्राइस का? कहाँ गया, ये रहा। रिवर्स कैलकुलेशन इसकी भी कर लोगे। अब ये जैसे 1 पॉइंट समथिंग माइनस 1 पॉइंट समथिंग जो ये इस तरह से चल रहा है, इट इज ऑल्सो जी स्कोर ऑफ, ये क्या है, ये भी वही है, जी स्कोर ऑफ लॉग ऑफ प्राइस। तो इसकी भी रिवर्स कैलकुलेशन कर लोगे तो दोनों प्राइस कंपेयर करके बता पाओगे अपने क्लाइंट। सिर्फ अपनी समझ के लिए करना है तो अभी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्शन और एक्चुअल वो दोनों ही इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? अगर मैं प्राइस और प्रेड प्राइस की बात करूं तो दोनों ही उस किस फॉर्म में है, जी स्कोर ऑफ लॉग ऑफ प्राइस। दोनों की वही तो फॉर्म हुई। तो जब दोनों सेम स्केल पे सेम ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हैं तो दोनों में मैं कंपैरिजन तो कर ही सकता हूँ। या दूसरा तरीका क्या है, दोनों की रिवर्स कैलकुलेशन करके मैं एक्चुअल प्राइस और प्रेडिक्टेड प्राइस प्रॉपर फॉर्म में लेके आऊँ उनको रिवर्स कैलकुलेशन करके, और फिर उन दोनों को कंपेयर करूँ। तो दोनों तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन whom you are explaining to. If you are explaining to your client or maybe somebody who is not very handy with this kind of mathematics, तो उनके लिए बेटर ये रहेगा कि पहले आप दोनों वेरिएबल को रिवर्स ट्रांसफॉर्म कर लें। If you are explaining it to yourself or who is you know somebody who is on the same page in terms of maths, उसके लिए कैसे भी दिखा सकते हैं। और RSQ कितनी आई है, RSQ आप लोगों की? ये दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। वसुंधरा, यू सी दिस? आप लोगों का इतना आ रहा था, मैं रन कर रहा हूँ कुछ और आ रहा है। रीजन वीक मैंने थोड़ा सा ट्विक कर दिया कोड आप लोगों को बीच बीच में। आउटलायर्स में कुछ चीज़ें गलत हो गई थी आप लोगों से, ज़रूरत से ज़्यादा इसके वो हो गया था कहीं, है ना, कैपिंग फ्लोरिंग कहीं ज़रूरत नहीं थी फिर भी कर दी, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा कर दी। यू नो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हर्ट। वन मोर थिंग टू पे अटेंशन टू इज, जो मैं आप लोगों से पहले बोल रहा था, ये जो आपने फालतू वेरिएबल्स हटाए थे, जो फाइनल मॉडल है देख रहे हो, स्टार्टिंग में मॉडल की एक्यूरेसी हमारी आ गई थी, कितनी आ गई थी, 0.78। हमारा आर स्क्वाड नीचे नीचे जाता रहा। जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे थे मेरा आर स्क्वाड धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा था, बट मैं फिर भी आई वॉज इंटरेस्टेड इन रिमूविंग अननेसेसरी वेरिएबल्स। अगर थोड़ा बहुत ही आर स्क्वाड ड्रॉप हो गया है, आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टू दैट। रीजन बीइंग आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, ये जो लास्ट में रिजल्ट आया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इवेंचुअली मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है कि जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है, जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है उस पे एक बहुत अच्छा फिट मॉडल बने। What do I want eventually? What do you want eventually? Option one, I want a very good fitted model on existing data. Option two is that I want and you want a model giving what is your call?
गॉट एवरीबॉडी? आई थिंक अब हाँ, इसमें तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी अदर ओपिनियन किसी को भी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ट्रेनिंग के टाइम पे क्या हो रहा था, मेरे मॉडल की आर स्क्वायर ड्रॉप हो रही थी, मैं कह रहा हूँ हो जाने दो, कोई बात नहीं, मेरे को उसकी इतनी चिंता नहीं है। मॉडल एग्जिस्टिंग डेटा पे कितना अच्छा बैठा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है कि अनसीन डेटा पे ये मॉडल ऐसा ना हो कि अचानक से हेवायर रिजल्ट देने लगे। तो आई डोंट वांट माय मॉडल टू बी ओवर फिटेड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। आई वांट इट टू बी फ्लेक्सिबल इनफ to catch the unseen data, to capture unseen data. ठीक है जी। So this brings us to the end of this. Okay, if you want to finally visualize, yes, you can visualize कि आपका prediction और ये कैसे कैसे हुए हैं। आपके predictions कुछ ऐसे ऐसे हुए हैं। ये ऐसे नहीं करते कि यहाँ पे, एक बात बताओ, ये भी प्राइस ही है, ये भी तुम्हारा prediction है और ये भी तुम्हारा prediction है। इन्हें देख के क्या कर रहे हो? ये तो तुमने लाइन फेर दी उसके ऊपर ही, जो तुम्हारा स्कैटर प्लॉट आया था, इसका कुछ मतलब थोड़ी है। ये हम कर रहे थे ये कंपेयर करने के लिए कि मेरा एक्चुअल प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था और मैंने जो प्रेडिक्ट किया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। ये देखने के लिए करते थे हम। एफिशिएंसी इतना आया था शुभम। स्केलिंग सी स्केलिंग करना भूल गए थे। स्केलिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्केलिंग करने से ही सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। आई एम सेइंग स्केलिंग इज वन ऑफ द स्टेप्स। स्केलिंग का फंडा समझ गए थे उस समय जब मैं बता रहा था? तो इट मे और मे नॉट ब्लो अप योर स्केल ऑफ वेरिएबल्स। So R is a pretty advanced tool. It can handle these different scales to a limit. बहुत हद तक वो हैंडल कर लेगा इन चीज़ों। सो अगर आपका कोई ऐसा भी चल रहा है कि दिस इज 10 20 एंड इट इज गोइंग, हियर इट इज गोइंग फॉर सम 10K 15K, इतने भी स्केल में डिफरेंस होगा, आर हैंडल तो कर लेगा उसको। बट देयर विल बी एल्गोरिदम्स जहाँ पर ये चीज़ें ब्लो आउट कर रही हैं, तो कर लेना चाहिए ऑन द सेफर साइड। अभी आप देखोगे आगे KNN वगैरह में ऐसा प्रॉब्लम होता है। हाँ, वसुंधरा, मैं वही कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी कि आर स्क्वाड में चेंज आ जाएगा स्केलिंग करने या ना करने से। स्केलिंग का मतलब क्या था, स्केलिंग हम क्यों कर रहे थे? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे वेरिएबल्स अगर डिफरेंट स्केल पे हुए, तो वन वेरिएबल इज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, मे बी थाउजेंड्स, सो इट विल ब्लो दिस अप, दिस स्केल, दिस डायमेंशन, जिस भी डायमेंशन में होगा। और दूसरी डायमेंशन कैसी रह जाएगी जहाँ पर स्केल बहुत छोटा है, वो कुछ ऐसा वेरी कर रहा होगा वेरिएबल। तो वही बता रहा था, रिग्रेशन एनालिसिस में this may or may not impact because R is pretty much capable to handle this scale thing, at least in regression analysis. But अभी आप आगे कुछ algorithms देखोगे जहाँ पर like KNN and clustering, जहाँ पर इससे बहुत impact आएगा, वहाँ पर scaling mandatory है करना। तो इसी को कह रहा हूँ, तो for the safer side scaling कर लेना चाहिए। रिग्रेशन के केस में हो सकता है ये ब्लो अप एक चीज में तो रिजल्ट ये जरूर करेगा, मालूम है किसमें? मॉडल की जो समरी देखते हैं ना आप,
वन थिंग विल बी डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड अगर स्केलिंग नहीं किया है तो। दीज कोएफिशिएंट्स, ये जो कोएफिशिएंट आएंगे ना, जो थाउजेंड में चल रहा होगा उसका क्या कोएफिशिएंट आएगा, बहुत ही छोटा, 10 टू द पावर माइनस समथिंग। जो बहुत ही छोटे स्केल पे चल रहा होगा उसका कोएफिशिएंट आएगा मे बी थाउजेंड्स में। दिस इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, स्केलिंग इज ऑल्सो डन फॉर अ पर्पज ऑफ, इसको हम कहते हैं कंप्यूटेशन कॉस्ट। Computation cost in the sense when there will be huge data sets and you are dealing with high very high magnitude numbers, tens of thousands or maybe millions or lakhs or maybe rather high numbers, तो कंप्यूटेशन कॉस्ट आता है। कंप्यूटेशन कॉस्ट मींस इन फॉर्म ऑफ टाइम, मशीन को टाइम लगता है उस कंप्यूटेशन को करने में, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी स्केलिंग करते हैं। तो getting the point, Vasundhara, it is not only for one sake, it solves many purposes. So it is a good habit to do scaling. नॉट स्केलिंग, ये स्केलिंग कहने की आदत मत डालो इसको। क्या बोलोगे इसको? नॉर्मलाइजिंग, डेटा नॉर्मलाइजिंग और मे बी डेटा स्टैंडर्डाइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉर्मलाइजेशन इज creating the data between 0 and 1, 0 being minimum, 1 being maximum. The standardization, when we are converting the data into its z-scores. Okay, very fantastic guys. So I think it's enough for today. What I will do is I will mail a mail one approach, my approach basically. I'm not saying it is the best or it is the ideal one scenario, but I'm just giving you something to refer kind of thing. जैसे डायमंड डेटा सेट में दिया था, nothing else. It can become your reference page. आप लोगों ने जैसे भी किया है उसमें देख सकते हो, अप्रोच डिफरेंट हो सकती है, रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकता है। देख लेना रन करके। So for today, let's wind it up here itself. I'm turning off recording, but I'll be here for another couple minutes if there is any question. As usual, very welcome. So